Students, today we prove formula for internal division. Here prove that the coordinates of the point which divides the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m:n। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिवन लाइन सेगमेंट है जो टू पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन कर रहा है, और इन लाइन सेगमेंट जो टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है उसको m:n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर टू पॉइंट्स सपोज a एंड b गिवन, a इज x1 y1 एंड b इज x2 y2। अब a और b को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है AB, उसको m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि लेट अस सपोज दैट लेट O be the origin and OX and OY be the X axis and Y axis respectively। यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये आपका x और y एक्सेस है, O is the origin, OX is x axis and OY is y axis। Let O be the origin and OX and OY be the x axis and y axis respectively। यहाँ पर O origin है, OX आपका x axis है, OY y axis है। Now let us suppose that A and B be any two points on this Cartesian plane and coordinate of AB x1 comma y1 and coordinate of BB x2 comma y2। Now join this A and B। So let O be the origin and OX and OY be the x axis and y axis respectively। आप देख सकते हैं यहाँ पर OX आपका x axis है, OY y axis है, O origin है, और इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई टू पॉइंट्स A एंड B है। सो लेट A x1 comma y1 and B x2 comma y2 be any two points on this Cartesian plane। Now we draw perpendicular AL and BM from B on x axis। आप देख सकते हैं यहाँ से A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है x एक्सिस पर AL, और B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है BM OX पर। सो ड्रा परपेंडिकुलर AL, ड्रा AL perpendicular on OX, BM perpendicular on OX। Let P be any point, P x y be any point which divides AB line segment in ratio m:n internally। Let P x y be any point which divides AB line segment internally in the ratio m:n। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक P पॉइंट अज्यूम किया गया है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। P पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स AP और BP का रेशियो जो है वो m:n का रेशियो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर here O is the origin, OX is x axis, OY is y axis। Here A and B
are 2 points. Coordinate of A B x1 comma y1 and coordinate of B B x2 comma y2. Now draw perpendicular AL from A on x-axis OX and draw perpendicular BM from B point on x-axis OX. And here PB any point on this line segment AB which divides this line segment internally in ratio m:n. हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये O आपका ओरिजिन है, OX x एक्सेस है, OY y एक्सेस है, A और B इस कार्टेशियन प्लेन पर कोई 2 पॉइंट्स हैं। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, जबकि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। Now we draw perpendicular AL from A on OX. हम देख सकते हैं A पॉइंट से x एक्सेस OX पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है AL और B पॉइंट से x एक्सेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है BM. P इस लाइन सेगमेंट AB पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट सपोज किए गए हैं x, y. जो P पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट AB को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स AP और BP का रेशियो m:n है। नाउ वी ड्रा परपेंडिकुलर PN फ्रॉम P on OX. ड्रा परपेंडिकुलर PN from PN, draw PN perpendicular on OX and draw perpendicular AH and PK. AH perpendicular on PN, PK perpendicular on BN. आप देख सकते हैं यहाँ पर A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर AH ड्रान किया गया है PN पर और P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर PK ड्रान किया गया है BM पर। यहाँ पर AH इज परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम A पॉइंट ऑन PN and PK is the perpendicular drawn from P point on BM. Now here we can see that in these two triangles, in triangle AHP and AHP and PKB, this angle is equal to this because these are the corresponding angles. So in triangle AHP and triangle PKB, we can see that angle PAH is equal to angle BPK. Both are the corresponding angles. आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में PAH और BPK में जो एंगल A है और एंगल P है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी संगत कोण है, तो ये बराबर होंगे। नाउ वी कैन सी हियर दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर 90 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर एंगल PHA is equal to angle BK and P both are right angle. आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल PHA यानी ये एंगल BKP ये दोनों एंगल राइट एंगल है यानी ये 90 डिग्री है। अब आप डबल ए से अगर किसी ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, यानी डबल ए से आप लिख सकते हैं एंगल क्राइटेरियन से वी कैन राइट हियर ट्रायंगल PAH is similar to triangle PAH is similar to BPK. Here we can see that from this similarity, here A corresponding angle A is P here and corresponding H is K here. So these two triangles are similar triangle. आप देख सकते हैं PAH और PPK इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल A
और एंगल P है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, तो ये बराबर होंगे। दूसरा ये एंगल PHA इज इक्वल टू एंगल BKP होगा क्योंकि बोथ आर राइट एंगल। अब किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पर डबल ए से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PAH सिमिलर टू ट्रायंगल BPK। We know that in similar triangle corresponding sides are proportional. Here the corresponding side of PA is BP. So we write here PA upon PB is equal to, here AH side is corresponding to PK and here PH side is corresponding to BK. Since in similar triangle corresponding sides are proportional. सिमिलर ट्रायंगल को आप समरूप त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। किसी भी समरूप त्रिभुज में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो चूंकि यहाँ पर PAH और BPK ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, इसलिए PA के करस्पॉन्डिंग साइड BP है तो PA और BP का रेशियो, AH के करस्पॉन्डिंग साइड PK है तो AH और PK का रेशियो, इसी तरीके PH के करस्पॉन्डिंग साइड BK है तो PH और BK का रेशियो इक्वल होगा। Now we find here PA and PB. So in figure we can see here OL is equal to x1 and AL is equal to y1. आप देख सकते हैं यहाँ A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो OL x1 के इक्वल होगा, AL y1 के इक्वल होगा। Similarly ON here x and PN here y। आप देख सकते हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कामा y है तो ON x के इक्वल होगा और PN y के इक्वल होगा। Similarly here OM is x2 and BM is y2। आप देख सकते हैं यहाँ पर B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो OM x2 के इक्वल होगा और BM y2 के इक्वल होगा। Now we can see from the figure here ln, here AH is equal to ln, आप देख सकते हैं AH जो है वो ln के इक्वल है और ln is equal to ON minus OL है तो इसको ON minus OL लिखेंगे। अब ON minus OL, ON is equal to है x1 minus ON is equal to है x, ON is equal to x here minus OL is x1। Similarly we find here PK, so we can see from the figure PK is equal to NM। आप देख सकते हैं यहाँ PK NM के इक्वल है and NM is equal to OM minus ON। जब OM में से ON सब्ट्रैक्ट करेंगे तो NM मिलेगा and OM is here x2, we can see here minus ON is here x, so PK is x2 minus x here। Now we find here PH, so PH is equal to, this is PN minus HN। आप देख सकते हैं जब PH निकालने के लिए PN में से HN को माइनस करेंगे तो PH फाइंड आउट होगा। Here PN, this is equal to y, we can see here, and HN here is equal to AL and AL is equal to y1, so this is y minus y1। Similarly BK we find, so BK is equal to here BM minus KM। आप फिगर से देख सकते हैं BM में से KM माइनस करेंगे तो BK मिलेगा
BM is equal to here Y2 minus KM is here KM is here equal to PN, and Pn is here equal to y, so this is y2 minus y. आप फिगर से देखकर ये ON AH और PK BH PH और PK इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो OL x1 होगा और AL y1 होगा। इसी तरीके से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है तो ON x के इक्वल होगा और PN y के इक्वल होगा। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है इसलिए OM x2 के इक्वल होगा, BM y2 के इक्वल होगा। अब AH निकालने के लिए AH is equal to है ln, from figure we can see here AH is equal to ln and ln is equal to ON minus OL। तो AH निकालने के लिए AH ln के इक्वल है। अब ln निकालने के लिए ON में से OL माइनस करेंगे। ON आपका x है, OL x1 है तो जो AH होगा वो x माइनस x1 होगा। इसी तरीके से PK निकालने के लिए PK NM के इक्वल है और NM निकालने के लिए OM से ON को माइनस करेंगे। अब OM आपका x2 के इक्वल है, ON x के इक्वल है तो ये x2 माइनस x हो गया। अब PH निकालने के लिए PN में से HN माइनस करेंगे तो Pn आपका y के इक्वल है और Hn Al के इक्वल है, Al y1 के इक्वल है इसलिए Ph जो होगा y माइनस y1। अब Bk निकालने के लिए Bm में से Km माइनस करेंगे। Bm आपका y2 है, Km Mn के इक्वल है, Mn y के इक्वल है यानी Bk जो होगा वो y2 माइनस y होगा। Now we put here value of PA, PP, AH, PK, PH, BK. We know that PA and PB ratio is m:n, so this is m divided by n here. And AH is here x minus x1 and PK is here x2 minus x is equal to PH is here y minus y1 divided by BK is here y2 minus y. Now we solve these three ratios. So first we take these two and cross multiply these. So m multiplied by x2 we get mx2 minus mx is equal to nx minus nx1. Now we take this nx1 in the left hand side. So we write mx2 plus nx1 and this mx on the right hand side, so mx plus nx. Now we take common x on the right hand side, we get m plus n in the bracket and mx2 plus nx1 is equal to this one. So from here x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. Now we taking here second and first and third ratio, so m by n is equal to y minus y1 divided by y2 minus y. Now we cross multiply this, so my2 minus my is equal to ny minus ny1. Now this ny1 left in transform in the left hand side and my transform in the right hand side. So my2 plus ny1 is equal to my plus ny. Taking y common from two terms on the right hand side, so we get m plus n, y is equal to my2 plus ny1. Here we can see that y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. So the coordinates of, here we can write, so the Cartesian coordinates of point PB, so the coordinates of PB mx2 plus nx1
डिवाइड बाई m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर, फिर से एक बार समझते हैं। हेयर O इज द ओरिजिन, OX इज द x एक्सेस, OY इज द y एक्सेस। हेयर A एंड B 2 पॉइंट्स ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन। आप देख सकते हैं A और B कोई 2 पॉइंट्स हैं इस कार्तीय तल पर। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A be x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B be x2, y2। यहाँ पर कैपिटल A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2। नाउ वी ज्वाइन दिस पॉइंट A एंड B, वी गेट AB लाइन सेगमेंट। लेट P x y be any point on this line segment AB। हम ये सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट AB पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, और ये P पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Here point P divides this line segment AB internally in the ratio m/n, that is AP ratio PB is equal to m/n। Now draw perpendicular AL on x axis। So this is AL, आप देख सकते हैं AL पॉइंट A से इस x axis OX पर परपेंडिकुलर है। Similarly we draw perpendicular BM from B point on this x axis, so BM is perpendicular। Now we draw perpendicular PN from P on this x axis, so now we draw perpendicular AH from A point on PN and draw perpendicular PK from P point on PN। आप देख सकते हैं AL, PN और PM ये तीनों A, P, B पॉइंट से x एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए। इसी तरीके से AH A पॉइंट से PN पर परपेंडिकुलर है और PK P पॉइंट से PM पर परपेंडिकुलर है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसलिए OL x1 के इक्वल होगा, AL y1 के इक्वल होगा। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y है, तो ON x के इक्वल होगा और PN y के इक्वल होगा। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसलिए OM x2 के इक्वल होगा और BM y2 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम AH निकालने के लिए AH ln के इक्वल होगा, फिगर से आप देख सकते हैं AH ln के इक्वल है, और ln निकालने के लिए ON में से OL माइनस करेंगे। अब ON y के इक्वल है, OL x1 के इक्वल है, ln ON x के इक्वल है, OL x1 के इक्वल है, तो आपका ln जो होगा वो x माइनस x1 होगा। इसी तरीके से pk निकालने के लिए pk इज इक्वल टू है nm, और nm निकालने के लिए om में से on को माइनस करेंगे। om आपका y2 है, on y है, तो ये y2 माइनस pk निकालने के लिए pk इक्वल है nm के, और nm निकालने के लिए om में से on को माइनस करेंगे। om आपका x2 है और on यहाँ पर x है, तो ये x2 माइनस x होगा। इसी तरीके से pH निकालने के लिए Pn में से Hn को माइनस करेंगे, और Pn आपका y है, y माइनस Hn होगा। अब Hn Al के इक्वल है और Al y1 के इक्वल है, तो ये pH जो होगा वो y माइनस y1 होगा। इसी तरीके से Bk निकालने के लिए Bm में से Km को माइनस करेंगे, और Km Pn के इक्वल है, Pn y के इक्वल है, यानी Bk जो होगा y2 माइनस y हो जाएगा। अब आप दो ट्रायंगल PAH और BPK में देख सकते हैं, ये एंगल A और एंगल P ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये इक्वल होंगे। दूसरा एंगल H और एंगल K ये राइट एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। तो ट्रायंगल PAH एंड ट्रायंगल BPK these are similar triangle by double A criterion। तो सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, तो PA के करस्पॉन्डिंग साइड PB है, तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू
ए एच अपॉन पी के इज इक्वल टू पी एच अपॉन बी के। अब इसमें पी ए अपॉन पी बी, पी ए और पी बी का रेशियो m/n गिवन है। ए एच अपॉन पी के, ए एच की वैल्यू x माइनस x1 है और पी एच की पी के की वैल्यू x2 माइनस x है। इसी तरीके से पी एच की वैल्यू y माइनस y1 है और बी के की वैल्यू y2 माइनस y है। जब हम फर्स्ट टू रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आएगी, और फर्स्ट और थर्ड रेशियो को सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस आनी। दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट टू लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने का फार्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। थैंक यू।